بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے دن دونوں فوجوں کے لیے تشویش کا دن تھا، لیکن ابو الحسن اپنے دشمن کی نسبت کہیں زیادہ پریشان تھا۔ غرناطہ سے موسیٰ 2000 سپاہیوں کی کمک بھیج چکا تھا، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں اس کے 5000 سپاہی شہید اور زخمی ہو چکے تھے۔ ابو الحسن کی فوج کے افسروں کے اندازے کے مطابق عیسائی مقتول اور زخمی سپاہیوں کی تعداد 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن جنگ کے 2 دنوں میں اس کے پاس اندلس کے مختلف شہروں سے 15,000 کے قریب تازہ دم سپاہی پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے متعلق ابو الحسن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سیلاب روکے ہوئے ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو الحسن کا حوصلہ پست نہ ہوا اور اس کی فوج کا ہر سپاہی فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ میدان سے منہ موڑ کر بھاگے تو دشمن چند دن تک غرناطہ کی دیواروں تک پہنچ جائے گا۔ تیسرے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قسطلہ کی فوج سے ایک نائٹ نے، جس کے تمام جسم پر لوہے کا غلاف چڑھا ہوا تھا، میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے خود کی شکل بیل کے چہرے سے مشابہ تھی۔ اس کے ہتھیار اس قدر بھاری تھے کہ گھوڑے کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ ایک بربری نوجوان اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کے نیزے کی ضرب کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد ایک قوی ہیکل ہسپانوی مسلمان آگے بڑھا، لیکن اس کی تلوار اور نیزے کی ضربیں اس آہن میں چھپے ہوئے نائٹ پر بیکار ثابت ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں یہ نائٹ اپنے دوسرے مد مقابل کو بھی قتل کر چکا تھا اور فرڈینینڈ کے سپاہی مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ آہن پوش نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے میدان میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور غرناطہ کی فوج کی طرف منہ کر کے اپنے نئے مد مقابل کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم بن رضوان ابو الحسن سے اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کا پسینے میں بھیگا ہوا گھوڑا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے آ رہا ہے۔ اس کا لباس بھی غرناطہ کے سپاہیوں سے مختلف تھا۔ زیرہ کی بجائے جسم پر سفید قبا تھی اور خود کی بجائے سر پر امامہ تھا، اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ سرخ رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے غرناطہ کی فوج کی صفوں سے آگے نکل کر ایک لمحے کے لیے اپنا گھوڑا روکا اور اپنی چمکتی ہوئی تلوار نیام میں ڈال لی۔ لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ وہ نیزے سے حملہ کرے گا، لیکن اس نے نیزہ بھی زمین میں گاڑ دیا۔ دونوں طرف کے تماشائی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ نقاب پوش نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عیسائی آہن پوش نیزہ تان کر اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کترا کر آگے نکل گیا۔ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایک چھوٹا سا چکر دینے کے بعد نقاب پوش دوبارہ اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحہ پیشتر اسے خالی ہاتھ دیکھا تھا اب اس کے ہاتھ میں کمان دیکھ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ آہن پوش گھوڑا موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ہسپانیہ کا یہ نائٹ، جو طاقت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جسے بھاری اسلحہ کے باعث 4 آدمیوں نے مشکل سے گھوڑے پر لادا تھا، ایک چٹان کی طرح گھوڑے سے گرا۔ کمند کا دوسرا سرا نقاب پوش کے گھوڑے کی زین کے ساتھ منسلک تھا۔ غرناطہ کی فوج قسطلہ کے آہنی انسان کی بے بسی پر مسرت کے کہے لگا رہی تھی۔ نقاب پوش نے آن کی آن میں اسے گھسیٹ کر ابو الحسن کے پاؤں میں لا ڈالا اور چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں قرطبہ کے محاذ سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ابو الحسن مسرت سے بے خود ہو کر چلا اٹھا، بدر، جس فتح کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ یقیناً شاندار ہوگی، لیکن مجھے فتح سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ میں تائید غیبی کا منتظر تھا۔ کتنی فوج بچا کر لائے ہو؟ بدر نے کہا، صرف 500 سپاہیوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی فوج میں 2000 کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ منصور بھی پہنچ چکا ہے۔ ابو الحسن نے اچانک پریشان سی صورت بناتے ہوئے کہا، لیکن فوج کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔ بدر نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ عزوگل نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، آج کا دن تمہارے لیے مبارک ہے۔ قرطبہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور تمہارا سرحدی عقاب تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ سپاہیوں نے سنتے ہی مسرت کے نعرے بلند کیے اور بدر نے عزوگل سے مخاطب ہو کر کہا، معاف کیجیے، آپ نے انہیں پوری خبر نہیں سنائی۔ ہم قرطبہ کی فوج کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا، وہ تقریباً تمام کی تمام میدان میں پڑی ہے، صرف 500 یا 600 سپاہی بچ نکلے ہوں گے۔ نعیم بن رضوان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے گھوڑے کی باگیں درست کی اور کہا، اس فتح کی خوشی میں آج قسطلہ کے 15 سواروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عہد کرتا ہوں، لیکن شگون کے لیے آپ کا نیزہ استعمال کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ اس کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کا نیزہ، جو ابھی تک زمین میں نصب تھا، اکھاڑ لیا۔ فرڈینینڈ کے 4 نائٹ یکے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں آئے اور نعیم نے چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخری نائٹ کے قتل پر
फर्डिनेंड ने फौज को हमले का हुक्म दे दिया। दोपहर के वक्त जब लड़ाई जोरों पर थी, मंसूर बिन अहमद बदर की फौज लेकर पहुंच गया। तीसरे पहर फर्डिनेंड की फौज में शिकस्त के आसार नमूदार होने लगे। नईम बिन रज़वान 14 आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था और 15 आदमियों को कत्ल करने का अहद पूरा करना चाहता था कि एक शख्स का नेज़ा उसके सीने में लगा। वो गिरने ही वाला था कि बदर बिन मुगीरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे आगे बिठा लिया। बदर बिन मुगीरा उसे जख्मियों के हैमे पर पहुंचाने के लिए मैदान से निकलना चाहता था, लेकिन नईम ने कहा, बदर, मैं जानता हूं कि मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैंने अपना अहद पूरा नहीं किया। मैंने दुश्मन के 14 सिपाही कत्ल किए हैं, अभी एक बाकी है। मेरे जख्म को हाथ से दबाकर खून बंद रखो, अपना नेज़ा मुझे दो और मुझे दुश्मन के करीब ले चलो। मुझे अपना अहद पूरा कर लेने दो, फिर मुझे जहां जी चाहे ले जाना। बदर, ये एक दरखास्त है। बदर मुतासर हुए बगैर ना रह सका। उसने अपना नेज़ा उसके हाथ में थमा दिया और उसके बहते हुए जख्म पर हाथ रखकर घोड़े का रुख दुश्मन की सफ की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब वो दुश्मन के एक सवार के करीब पहुंच चुके थे, बदर ने महसूस किया कि नेज़े पर नईम के हाथ की गिरफ्त ढीली हो रही है। उसने नेज़े को सीधा रखने के लिए नईम का हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया और बोला, होशियार, यह तुम्हारा 15वां शिकार है। नईम ने नीम बेहोशी की हालत में कहा, बदर, मुझे अपने साथ चिमटाए रखो, काश मैं अपना अहद पूरा कर सकता। तुम अपना वादा पूरा कर चुके हो। ये कहते हुए बदर बिन मुगीरा ने नेज़ा मुकाबले पर आने वाले एक सवार के सीने में उतार दिया। ईसाई सवार घोड़े से गिर पड़ा, लेकिन उसके साथ ही नईम ने बेहोशी की हालत में सर झुका दिया। बदर घोड़ा भगाता हुआ जख्मियों के हैमे के करीब पहुंचा और चंद नौजवान नईम बिन रज़वान को घोड़े से उतार कर अंदर ले गए। बदर बिन मुगीरा घोड़े से कूद कर खैमे में दाखिल हुआ। बशीर बिन हसन जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ था। वह फौरन नईम की तरफ मुतवज्जह हुआ। बदर ने कहा, बशीर, इसे बचाने की कोशिश करो। बशीर बिन हसन ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखने के बाद जल्दी से उसकी ज़िरा खोलकर जख्म का मुआयना किया और दोबारा उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए बदर की तरफ देखकर सर हिला दिया। बदर ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। बशीर ने जवाब दिया, इस जख्म के बाद इसका चंद लम्हे जिंदा रहना भी एक मौजज़ा है। मालूम होता है कि किसी इरादे की तकमील की ख्वाहिश मौत का हाथ रोक रही है। ये होश में आ रहा है। अगर होश में आए तो इसे बता दे कि वो अपना अहद पूरा कर चुका है। ये कहकर बदर बिन मुगीरा भागता हुआ खेमे से बाहर निकला और छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। थोड़ी देर के बाद फर्डिनेंड की फौज में शिकस्त के आसार देखकर बदर बिन मुगीरा ने बेहतरीन तरबियत याफ्ता सवारों को मुनज़्ज़म करके हुक्म दिया कि वो ताक़ुब के लिए तैयार रहें। शाम से थोड़ी देर कबल फर्डिनेंड की फौज मैदान में लाशों के अंबार छोड़कर भाग निकली। जब सिपाही अबुल हसन के गिर्द जमा होकर फतह के नारे लगा रहे थे, वो घोड़े से उतरकर सर बसजूद हो गया। जब वह उठा तो उसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह रहे थे। अबुल हसन ने इधर उधर देखने के बाद कहा, हमारा सरहदी अकाब कहाँ है? अज़ुगल ने जवाब दिया, वो अपने जांबाजों के साथ जा चुका है। कहाँ? अबुल हसन ने पूछा। भागने वालों के ताक़ुब में, अज़ुगल ने जवाब दिया। हमने मना किया था, सिपाही बहुत थके हुए थे, लेकिन वो मुझे आपकी खिदमत में माजरत पेश करने के लिए कह गया है। वो अधूरी फतह का कायल नहीं, ताहम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसने गरनाता का कोई सिपाही अपने साथ नहीं लिया। अबुल हसन ने कहा, तुमने हमें गलत समझा। खुदा की कसम, अगर वो मेरी तमाम फौज अपने साथ ले जाता तो भी मुझे इस कदर परेशानी ना होती। मैं उसके एक आदमी का नुकसान भी नाकाबिले तलाफी समझता हूँ। अज़ुगल ने कहा, आप परेशान ना हों, वो अपना काम जानता है। वो मुकाबला करने वालों पर शेर की तरह हमला करता है और भागने वालों पर इकाब की तरह झपटता है। अबुल हसन ने कहा, हम कुर्तबा के महाज पर इसकी फतह के तमाम हालात सुनना चाहते हैं। अब्बास, तुम उसके साथ थे, कहीं उसने फौज की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुबालगा आराई से काम तो नहीं लिया? अब्बास गरनाता की फौज का एक सालार था। उसने कहा, यह वाक़यात ऐसे हैं जिनका सिर्फ देखने वाले की आंख को यकीन हो सकता है, सुनने वाले के कान शायद यकीन ना करें। उसके बाद अब्बास ने जंग की तमाम तफसीलात सुनाई। जब उसने मंसूर बिन अहमद के कारनामों का जिक्र किया तो अबुल हसन ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि बदर बिन मुगीरा के तरकश में इस किस्म के तीर हैं तो मैं आज से चंद बरस पहले ऐलान जंग कर चुका होता। रात भर आराम करने के बाद थके हुए सिपाही अलल सुबह मुअज्जिन की अजान सुनकर बेदार हुए। अबुल हसन कई दिनों के बाद जी भर कर सोया था। जब वो नमाज के लिए खेमे से बाहर निकला तो पहरेदारों से उसका पहला सवाल ये था, बदर बिन मुगीरा नहीं आया? पहरेदारों ने नफी में जवाब दिया। नमाज के बाद अबुल हसन की तहरीक पर बदर बिन मुगीरा और उसके साथियों की सलामती के लिए दुआ की गई। दोपहर तक अबुल हसन की परेशानी तशवीश में तब्दील हो चुकी थी। उसने सवारों के एक दस्ते को
बदर बिन मुगीरा और उसके साथियों का पता लगाने के लिए रवाना किया और खुद अपने जर्नैलों के साथ एक टीले पर चढ़कर उसकी राह देखने लगा। अचानक एक अफसर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए। अबुल हसन का दिल मुसरत से उछलने लगा। हद नज़र पर गर्द के बादल उठ रहे थे। अबुल हसन ने चंद सवारों को उस तरफ जाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने वापस आकर सरहदी अकाब की वापसी की खबर दी। अज़ुगल ने कहा, एक खुशखबरी मुझसे भी सुन लीजिए। अबुल हसन ने कहा, वो क्या? अज़ुगल ने जवाब दिया, सरहदी अकाब रस्त का एक बहुत बड़ा जहीरा अपने साथ ला रहा है। अबुल हसन के इस्तफसार पर सवारों ने इस बात की तस्दीक की कि बदर बिन मुगीरा के साथी मवेशियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ हाँक कर ला रहे हैं। भेड़ों बकरियों के अलावा सैकड़ों घोड़े और खच्चर अनाज से लदे हुए हैं। जब लोशा की जंग में नईम बिन रजवान जैसे मुजाहिद अपने खून की रोशनाई से उंदलस की किस्मत का फैसला लिख रहे थे, गरनाता के शाही ऐवान में एक और फैसला लिखा जा रहा था। अलहमा पर ईसाइयों के कब्जे की खबर सुनकर गद्दार अबू दाऊद फौरन अपने शागिर्द अबू अब्दुल्ला के पास पहुंचा और उसे मोम देखकर बोला, शहजादे, मैं कहता ना था कि कुदरत ने सुल्तनत गरनाता की तामीर नौ के लिए अबुल हसन को नहीं बल्कि तुम्हें मुंतखब किया है। उंदलस के मुसलमानों की किस्मत का सितारा उस वक्त चलेगा जब तुम्हारे सर पर गरनाता का ताज रखा जाएगा। शहजादे, तुम्हारा वक्त आ रहा है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, मेरा वक्त खुदा जाने कब आएगा। अलहमा हमारे हाथ से जा चुका है, अब वो किसी भी वक्त गरनाता पर चढ़ाई कर सकते हैं। अबू दाऊद ने कहा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अलहमा के छिन जाने के बाद अवाम और बाज़ सरदार भी महसूस करने लगे हैं कि इस नाजुक दौर में गरनाता की अमारत बदलना ज़रूरी है। मैं चंद बरबरी और हिस्पानवी सरदारों से मिल चुका हूँ, उन्होंने अपनी कोई ज़्यादा कीमत मुकर्रर नहीं की। अबू अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मूसा की मौजूदगी में किसी को दम मारने की जुर्रत ना होगी। अबू दाऊद ने कहा, वक़्त आने पर हम उसके साथ भी निपट लेंगे। वो सरदार जिनको अबुल हसन ने बगावत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रखा है, अगर रिहा कर दिए जाएं तो आपके बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मूसा की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। अबू दाऊद ने कहा, मेरे ख्याल में वो आपका दोस्त नहीं है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन इस मामले में वो मेरा बदतरीन दुश्मन साबित होगा। अबू दाऊद ने कहा, वक़्त आने पर देखा जाएगा। वक़्त कब आएगा? अबू अब्दुल्ला ने कहा। अबू दाऊद ने कहा, अबुल हसन की शिकस्त के बाद गरनाता के लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, लेकिन अगर उसे फतह हुई तो? अबू अब्दुल्ला ने कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं। अबू दाऊद ने कहा, फतहात सिर्फ तुम्हारे मुकद्दर में हैं, लेकिन अगर उसे एक और कामयाबी नसीब हो भी गई तो वह एक बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होगी। वो तुम्हारे सौतेले भाई को तख्त पर बिठाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि वह उसे अवाम का मंजूर नज़र बनाने के लिए जंग में साथ ले गया है। अगर यह हुआ तो मैं इस काबिल नहीं कि अपने बाप के साथ लड़ सकूं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, आप मुतमईन रहें, लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अबू दाऊद ने कहा। चंद दिन बाद जब अबू अब्दुल्ला ने कुर्तबा के लश्कर की तबाही की खबर सुनी तो उसने अपने उस्ताद से कहा, एलची ये खबर लाया है कि सरहदी अकाब कुर्तबा के महाज से फारग होते ही लोशा की तरफ रवाना हो गया है। अबू दाऊद ने कहा, शहजादे, अब वो वक़्त आ गया है जिससे मैं डरता था। मुमकिन है कि लोशा के मैदान में अबुल हसन को फतह हो। ये फतह तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। जब सुल्तान शहर में दाखिल होगा तो गरनाता की अवाम उसके हर सही या गलत फैसले की तायीद करेंगे। उनकी निगाह में तुम्हारे सौतेले भाई का दर्जा तुम्हारी निस्बत कहीं बुलंद होगा, बल्कि उनके नज़दीक इस मुहिम का एक मामूली सिपाही भी तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल एहतराम होगा। अबू अब्दुल्ला ने मायूस होकर कहा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे परेशानी होती है। मेरा दिमाग मुझे एक ऐसे समुंदर में कूदने पर आमादा करता है जिसकी गहराई से मेरा दिल कांपता है। लेकिन जब मैं अपनी वालदा के पास जाता हूँ तो उनकी बातें मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। वो आज भी यही कहती थी कि मेरे वालिद बारहा इस बात का हलफ उठा चुके हैं कि वो मुझे अपना जानशीन बनाने के मुतालिक अपना वादा पूरा करेंगे। अबू दाऊद ने कहा कि अब शायद वक्त आ गया है कि मैं आपको किसी गलत फहमी में मुब्तला ना रहने दूं। मेरी बात गौर से सुनिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आज आपके वालिद का इरादा आपके मुतालिक बुरा नहीं, लेकिन इस वक्त आपकी उम्र 40 साल को पहुँच चुकी है। फ़र्ज़ कीजिए आपके वालिद 20 साल और ज़िंदा रहते हैं तो उस वक्त तक आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। और ये उम्र का वो हिस्सा है जब ज़िंदगी की तमाम उमंगें सर्द पड़ जाती हैं, जब इंसान आईने में अपनी सूरत देखने से घबराता है, जब इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत एक बिस्तर होती है, खा वो एक महल में हो या एक झोंपड़ी में। उस वक़्त आपकी अकल यकीनन बहुत पुख्ता होगी, लेकिन गर्म खून मुंजमद हो चुका होगा। और फिर ये कौन कह सकता है कि आइंदा 20 साल के वाक़यात
सुल्तान को आपके मुतल्लिक कोई और फैसला करने पर आमादा नहीं कर देंगे। शहजादे, इज्जत, शोहरत और नामवरी का दरवाज़ा ऐसा नहीं कि कोई ख्वाहिश करे और ये खुल जाए। उसे खटखटाना पड़ता है और बाज़ औक़ात तोड़ना पड़ता है। बड़े इंसानों की ज़िंदगी में एक फ़ैसला कुन मरहला आता है। जो सोच में वक़्त गुवाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। वक़्त की रेत में उनके पाँव के निशान गुम हो जाते हैं और जो जुर्रत से काम लेते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। अगरचे आपने मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप गरनाता के तख्त पर बैठने के लिए बेकरार हैं। आपको अब तक अगर अपनी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन ख्वाहिश की तकमील की जुर्रत नहीं हुई तो इसकी वजह यह नहीं कि आपके दिल में आपके वालिद का एहतराम है, बल्कि आपके दिल पर एक खौफ सवार है। इस बात का खौफ कि दुनिया आपको क्या कहेगी, अवाम आपके मुतल्लिक क्या फतवा देंगे। लेकिन याद रखिए, यह दुनिया एक कामयाब डाकू को फातेह कहती है और नाकाम मसल्ला को बागी का नाम देती है। अगर अबू अब्दुल्ला गरनाता के तहत पर बराजमान होकर सारे अंदलस पर अपनी अजमत के झंडे लहराता है तो दुनिया उसके मुतल्लिक ये कहेगी कि वो एक बदनसीब बाप का खुश नसीब बेटा था। उसको हक था कि वो अपने बाप का तहतो ताज छीन लेता। पर अगर अबू अब्दुल्ला 60-70 साल की ज़िंदगी में तहत नशीन होने का इंतज़ार करते करते चल बसता है तो तारीख के सफ़ात में शायद उसका नाम भी ना लिखा जाएगा। मैंने आपको एक मामूली इंसान समझकर आपके साथ अपनी किस्मत वाबस्ता नहीं की, लेकिन अगर आप तज़ब्ज़ुब में अपनी तमाम ज़िंदगी गंवाना चाहते हैं तो आज से हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, खुदा के लिए ये ना कहिए। अबू दाऊद ने कहा, तो आज आपको फैसला करना है, ये मौका शायद फिर ना आए। अबू अब्दुल्ला ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं इस वक्त इस काबिल हूँ कि बाप के खिलाफ बगावत कर सकूँ? अबू दाऊद ने कहा, आप 20 साल की उम्र में इस काबिल थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के कई बरस ज़ाया कर दिए। पुलिस हमारे हाथ में है, महल के दरोगा को आप खरीद चुके हैं, बर्बरी और हिस्पानवी उमरा में से अक्सर आपके हुक्म के मुंतजर हैं, खजाना आपके हाथ में है। और मूसा, अबू अब्दुल्ला ने कहा, उसे कैद करना मुश्किल नहीं। अबू दाऊद ने कहा। अबू अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन शहर की आवाम, उनमें फूट डाली जा सकती है। अबू दाऊद ने कहा, अरबी, हिस्पानवी और बर्बरी के अख्तिलाफ की आग दब गई है, बुझी नहीं। मुझे अरबों के ताउन की तवक्को नहीं, उनमें से सिर्फ चंद आदमी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आप अरबी ओहदेदारों को माजूल करके उनकी जगह हिस्पानवी और बर्बरियों को मुकर्रर कर दें तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक ये कि वो आपका साथ देंगे, दूसरा ये कि बर्बरी और हिस्पानवी मुसलमानों और अरबी मुसलमानों में नज़ा शुरू हो जाएगी। आपके पास फैसले के लिए सिर्फ 2 दिन हैं, इसके बाद शायद मौका हाथ ना आए। मूसा को गिरफ्तार करने का तरीका मैंने सोच लिया है। रात के वक़्त कसरुल हमारा का एक कुशादा कमरा चांदी और सोने की कंदीलों से रोशन था। गरनाता के बर्बरी और हिस्पानवी मुसलमान उमरा कुर्सियों पर बैठे हुए अबू अब्दुल्ला के साथ बातें कर रहे थे। मूसा दाखिल हुआ और मजलिस पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मूसा ने अहले मजलिस पर एक सरसरी निगाह दौड़ाई और अब्दुल्ला के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मैं आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ। अबू अब्दुल्ला उसके तेवर देखकर सहम गया, लेकिन एक सानिया के बाद संभल कर बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो यही कह सकते हो, ये सब खुदा के फजलो करम से मुसलमान हैं। मूसा ने कहा, बाज़ बातें हर एक के सामने नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त हम ये मजलिस बर्खास्त करने के लिए तैयार नहीं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम अगर कोई काम की बात करना चाहते हो तो यही करो। मूसा मजलिस का जायज़ा ले चुका था। उनमें से अक्सर वो थे जिन्हें पहली बार कसरुल हमरा में दाखिल होना नसीब हुआ था। आज तक सुल्तनत के किसी अमीर ने यह जुर्रत ना की थी कि वह मूसा को देखकर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे। अबू अब्दुल्ला के अल्फाज सुनकर वो ये महसूस कर रहा था कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।